Hello everyone. So basically we are going to start with a new topic, that is CSS, and in this lecture we'll complete whole CSS. Basically CSS is very vast topic, CSS बहुत बड़ा topic है. So बहुत अगर एक lecture में इसको complete करना चाहे so it's impossible. So we'll just cover the topics that is present in our syllabus, and it is very a small part of a big ocean. So never mind that after you doing this lecture you will be going to just clear the syllabus, not the whole CSS. Okay, so CSS is basically what? Okay, अगर मैं CSS की बात करूँ तो CSS क्या है? तो हम लोग ने HTML देखा था. तो HTML is basic structure of a website, but CSS is styling that same structure again and again. Okay, so CSS is used to style a structure which is known as HTML. ठीक है, HTML को स्टाइल करने के लिए. ठीक है, जैसे हम लोग ने एक ह्यूमन का एग्जाम्पल देखा था. तो ह्यूमन के बोन्स उसके HTML होते हैं. ठीक है, और ह्यूमन की फ्लैश उसका CSS और माइंड उसका जावा. ठीक है, सो CSS इज बेसिकली यूज टू style a website. Okay, more better way that how your website should look like you can define using CSS. ठीक है, इसको और अच्छे से जानेंगे. So basic definition is used, that is CSS is being used as in cascading style sheet, and you can style it as a web page, that how exactly the web page should look like. Yeah, it's better. Now there are two ways to you can do this using that CSS. ठीक है, अब बारी आती है, अब हमको पता है कि हाँ CSS को हम लोग स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं एक वेबसाइट को. नाउ कैसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ द मेन टॉपिक. ओके, सो व्हाट आई विल डू, I will tell you the two methods. Okay, to style the same document. Okay, and now you will tell me that which one is reliable and which one is better. Okay, so let's go to the editor. Now हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग HTML में कोड कर रहे हैं, so we know the basic syntax of the document. Okay, now I will just write an H1 tag over there, and I will write something like website. Okay, now this is my website. Okay, now I want to design this too. Okay, so what I will do, just add a style sheet over there. Okay, so मुझे अब यहाँ पे CSS यूज़ करना है किसके ऊपर, ये वेबसाइट के ऊपर. ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, मैंने दो मेथड बताया. एक तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ. ठीक है, एक तो मैं अपने CSS को HTML में सीधा इंटीग्रेट कर सकता हूँ. कैसे, HTML के कोड में CSS मैंने घुसा दिया. ठीक है, सो दिस इज इंटीग्रेटिंग द HTML into integrating the CSS into my HTML directly. And second one is that creating a different file and linking with my HTML. ठीक है, एक मैंने क्या किया, HTML में ही CSS उठा दिया. ठीक है, और दूसरे में मैंने क्या किया है कि HTML और CSS के अलग अलग फाइल्स बनाए हैं और फिर CSS को HTML से लिंक कर दिया. दैट्स इट. सो दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स अच्छे से देखने होंगे. ठीक है, पहले पहला वाला मेथड देखते हैं कि कैसे हम लोग CSS को HTML में ही यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स. फॉर दैट वी नीड अ स्टाइल tag. Okay, so just write our style, it will close and open the tag. Okay, now what I want to write in the CSS, I can write it into the style tag. Now what I will do, just write it H1 and that curly braces and some properties like color. I can adjust the color over there, so I will just write as a red color. It will give it red, so it is being red. Now I won't want to just capitalize all the letters, so I will just text transformation, so it will just capitalize all the letter, so better. Okay, now next is that not, it will not capitalize. Okay, because one letter is capital, so it will not capitalize. Okay, now next property we can use is that align center. Text align center, text align, text align, you can use it as center. Okay, being center. Now I can use a background color. Background color I can use mostly this one. Take, now what I will do, this is the basic thing that we can do with the style sheet. Now what I have trying to explain you there, मैंने यहाँ पे कोशिश क्या की है सिखाने की, explain करने की, कि that we have used the style tag into our main HTML document and done some CSS over my H1 tag. Okay, यहाँ पे मैं blue की जगह इसको something like blue, something like not. Okay, now ये कुछ अच्छा लगेगा. This is okay. Now मैंने यहाँ पे किया क्या है कि CSS को सीधा मैंने HTML, हमारे HTML डॉक्यूमेंट में इंटीग्रेट किया. कैसे इंटीग्रेट किया, यूजिंग दिस स्टाइल टैग. व्हाट दिस इज
माय स्टाइल टैग, मैंने स्टाइल टैग को यूज़ करके सीधा CSS HTML में घुसा दिया, ठीक है। अब लेकिन अगर मुझे यही काम किसी स्टाइल शीट को अलग से करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने फाइल्स में, जो पेज वाला है फाइल्स में जाएंगे और जो हमारा फोल्डर ओपन है वहाँ पे प्लस करके एक साइन आएगा, उसमें ऐड करेंगे व्हाट, स्टाइल्स करके, ठीक है। तो मैं स्टाइल्स करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्टाइल्स, और नाम के बाद स्टाइल्स मैंने नाम लिखा, फिर डॉट करके CSS मीन टू से दैट कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सो स्टाइल्स डॉट CSS मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। अब ये ऐड तो होगा, यस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐड हो गया है, ओके। अब इसके अंदर हमारी सारी CSS की कोडिंग करनी है, ठीक है, और सीधा यहाँ पे लाके लिंक कर देना। अब मैं यहाँ पे ये जो स्टाइल वाला टैग इसको मैं हटा देता हूँ, इसी को मैं एक नई फाइल से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखोगे फिर से वो सिंपल सा वेबसाइट बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल्स का मैंने फाइल बना लिया, HTML का डॉक्यूमेंट है इधर। अब मैंने जो स्टाइल का फाइल बनाया है, ये सेकेंड वे है, स्टाइल का फाइल बनाया है, उसको मैं इससे लिंक कराना चाहता हूँ। कैसे लिंक करूँगा, सिंपल सा लिंक का टैग है हमारे पास, ठीक है, लिंक रेल इज़ व्हाट की रिलेशन किसका है, स्टाइल शीट का है, ठीक है। अब यहाँ पे रेफरेंस क्या है, हाइपरटेक्स्ट का रेफरेंस क्या है, ठीक है। सो आई विल जस्ट राइट जो हम लोग ने नेम दिया था styles.html, स्टाइल्स और CSS, styles.css, यहाँ पे सजेशन आ गया, प्रेस एंटर, डन, ठीक है, हमारा लिंक हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे इसके अंदर, ये वाले डॉक्यूमेंट के अंदर, वो नेगलेक्ट होंगी। कैसे, मैं बताता हूँ। ये मेरा वेबसाइट है, मैंने H1 लिखा है इधर। नाउ आई विल जस्ट राइट कलर, पहले तो टेक्स्ट अलाइन कर लेता हूँ, टेक्स्ट अलाइन, I will just center, font family I will just write font family Vardhana, okay. Now font size I will just write 50 will be okay, 50 pixels. Now I will write font color will be okay. Now font decoration, text decoration, I think, not font decoration, text decoration, okay. I'll just write as underline, okay, so we'll just underline it all. Now I'll just write border, so border style, so I will just write double, okay, we'll just double this all. We'll just add some padding over there, so padding, not padding, I will just write margin, we'll just write left margin and top margin, okay. So I will just left margin over there, I will just add 700 pixels, right, and margin from right will be the same 700 pixels, okay. So it will now just remind me all this. I will just write 600 pixels will be okay with it, 600 pixels, no, 600 pixel, no, 500 pixel, okay, 500 pixel will be okay. Now it will just better, okay. I will just add something more, it's like background color will be always like aqua, that's it, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कुछ, हमने CSS ऐड कर दिया यूजिंग अ स्टाइल टैग, ठीक है। अभी बिकॉज इससे ये लिंक है तो हमारा HTML डॉक्यूमेंट भी वैसे ही चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू शुड नो एज एन वेब डेवलपर कि कैसे स्टाइल शीट को लिंक करते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक ये अच्छे से समझा होगा, उतना ज़्यादा कुछ टफ इसमें है नहीं। एंड यस, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस, सो यू कैन जस्ट take this as an short, you can just have, okay. So now where's my bandicam is on, okay. Now okay, see now ये हो गया हमारा कुछ स्टाइल्स मैंने जो इसमें ऐड किया था, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने ऐड किया था जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट में निगलेक्ट हो रही, ठीक है। सो दैट इज जॉइनिंग एंड यूजिंग द सेम थिंग इनटू द HTML, आई थिंक इतना समझा होगा, ठीक है।
अब बारी आती है इंटीग्रेशन, ये सब मैं बता चुका हूँ कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। यूजिंग स्टाइल शीट ये भी बता चुका हूँ। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट यूजिंग सीएसएस, सब कुछ चीज़ें हम लोग को जाननी है कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करनी है, ठीक है। सो चलो चलते हैं इसके ऊपर, एक एक चीज़ को करके देखेंगे, ठीक है। सो पहला आता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर भी मैंने बताया है, तभी भी बता दूँ। ओके, नाउ दिस इज आवर सीएसएस। आई विल जस्ट क्लियर ऑल दिस थिंग आउट ऑफ दिस कमेंटेड। कमेंट मतलब ये हमारे कोड में फिर आएगा नहीं, ठीक है। जो हमारा वेबसाइट है वो सिंपल से फिर से हो गया। अब हम लोग को टेक्स्ट कलर यूज़ करना है, प्रॉपर्टी टेक्स्ट और कलर, ठीक, टेक्स्ट कलर। सो उसके लिए विल जस्ट राइट कलर and just we can write it color and had much colors over there, so just write it color. Now we have done it color, so you can see that the color of that website is being changed. Now we will have text alignment. Text alignment will just justify that where you want your text, the text kahan pe chahiye. So I'll just align the text, so I'll just write text alignment, text align, and just write center. Okay, this is the text alignment done. Next, text decoration. So text decoration is basically used for underlining your text, so I'll just write text decoration over there, text decoration. So I'll just underline the text. Now it's been underlined over, you can see. Now next is text transformation. Text transformation is basically used to capitalize or lowercase your letters basically. So I'll just text transformation, text transformation. I'll just capitalize, lowerize, all these things can be done. So I'll just lowerize, so you can say that W is been lowered, okay. And if I just capitalize, it will not capitalize it all because one of them was capitalized, okay. So I will just capitalize all, it will not applicable with it because one letter is capitalized and both are decapitalized, okay. So this is the property of text transformation. So I think you got it. So I will just comment it out because it don't have use in that particular code. Next is the text indentation. अब text indentation क्या होता है? तो text indentation is basically what कि तुम लोग अपने text को अंदर की तरफ ऐसे ढकेलोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारा वेबसाइट से था, तो इसको हम लोग को अंदर की तरफ कुछ है नहीं ढकेलने के लिए, तो मैं यहाँ पे कुछ और एक ऐड करता हूँ, H3 ऐड करता हूँ, ठीक है। वेबसाइट नेक्स्ट, मैंने नेक्स्ट ऐड किया है, ठीक है। और चलो इसको अब काम करते हैं इसके ऊपर। मैं फिर से CSS में चले आता हूँ, ठीक है। अब मेरे को H3 के ऊपर काम करना है, तो मैं H3 को ले लेता हूँ, ओके, H3। अब मैं इंडेंट और टेक्स्ट इंडेंटेशन बोलता हूँ, टेक्स्ट, या फिर इसको पहले सेंटर कर लेता हूँ, अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, आई थिंक टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया, ठीक है। अभी इसको मैं इसके ऊपर मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ सबको बड़ा करने के लिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज, it will just capitalize all this thing, okay. Now next I will just write here indentation, text indentation, text indent, okay, text indentation वो just slightly, अभी यहाँ पे हमारा text था, next था, ठीक है। तो इसको just थोड़ा सा इधर क्लिक कर देगा, कितना क्लिक करेगा? टेक्स्ट इंडेंटेशन में चाहता हूँ कि उसको 100 पिक्सल से अंदर क्लिक कर दे, तो 100 पिक्सल से अंदर ये ऐसे अंदर ऐसे अंदर चला गया, ठीक है। सो दिस इज टेक्स्ट इंडेंटेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज दैट टेक्स्ट और लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग इज व्हाट, कि लेटर के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी, ये W, E, B ये सब लेटर्स हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग स्पेसिंग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग लिखता हूँ, टेक्स्ट स्पेसिंग, और यू कैन जस्ट राइट लेटर spacing by which 10 मैं pixels डालता हूँ इधर, so 10 pixel से इसके letters split हो जाएंगे, that's it. So this is not that much of good that much of rocket science, it's very easy thing, you can just do it with
by your own OBC. Okay, so I'll just comment it out, it's not in use that much. Now next is that line height. सो लाइन हाइट इज़ वॉट की लाइन हाइट क्यों यूज़ होता है हमारे लिए कि हमारी एक लाइन होती है मान लीजिए, ठीक है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, इसके हमें अगर हाइट बढ़ानी हो, जो लाइन है इन दोनों के बीच का जो हाइट है उसको बढ़ाना हो तो हम लोग को लाइन हाइट का यूज़ करना है, ठीक, कैसे करना है। सो आई हैव दिस वेबसाइट ना, इसका लाइन कुछ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सो इसको मैं लाइन हाइट को अगर इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट लाइन हाइट। ओके, सो इसको अगर इंक्रीज़ करूँ मैं 10 पिक्सल से 10 पिक्सल्स, सो उतना हो जाएगा, ठीक है, अभी कम हुआ बिकॉज उससे पहले ज़्यादा था, ठीक है। अगर मैं इसको 5 पिक्सल से करूँ 5 पिक्सल और कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर दूँ 100 पिक्सल्स तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, तो लाइन एक की लाइन बढ़ जाएगी। इसमें से सीधा लाइन के बीच में स्पेसिंग कितनी है वो बताने के काम होता है। अगर मैं सिर्फ 1 पिक्सल्स करूँ, ठीक है, 1 पिक्सल्स और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज चलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। ओके, सो टेक्स्ट डायरेक्शन, बेसिकली डेकोरेशन डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन इसका कहने का मतलब क्या है, उसके लिए हम लोग को सेंटर वाला अनमार्क करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन मतलब क्या, अभी हमें किस साइड से लिख रहा हो ये बताना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन। और यहाँ पे मैं सीधा डायरेक्शन लिखता हूँ बिकॉज टेक्स्ट डायरेक्शन इज नॉट है। ओके, डायरेक्शन लिखा मैंने। डायरेक्शन में LTR मतलब होता है, यहाँ पे देखो दो सजेशन है, LTR और एक RTR। LTR इज वॉट लेफ्ट टू राइट, ठीक है, RTR इज राइट टू लेफ्ट। ओके, सो मैं LTR करता हूँ तो ये लेफ्ट टू राइट पहले से है, ठीक है। अगर मैं RTL करता हूँ, RTL राइट टू लेफ्ट, सो राइट टू लेफ्ट ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ। सो दिस इज द टेक्स्ट डायरेक्शन। ओके, सो अगर फिर से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं फिर से इसको बीच में ला देता हूँ, ठीक है, ये सेंटर वाले को ऑन करूँ, दैट्स इट, ठीक है, अभी फिर से वैसे होता है। ओके, सो टेक्स्ट डायरेक्शन भी समझा होगा। टेक्स्ट शैडो हम लोग को उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। शैडो भी बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, कैसे करोगे बेसिकली तो यहाँ पे लिखेंगे मैं शैडो या फिर टेक्स्ट शैडो टेक्स्ट शैडो आएगा, टेक्स्ट शैडो, ठीक है, आ गया टेक्स्ट शैडो। अब हमें कितना शैडो कहाँ ऐड करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर तुम्हें शैडो और ज़्यादा इसमें चाहिए तो मैं 10 पिक्सल्स इधर से ले लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ कि कितना नीचे चाहिए तो मैं 1 पिक्सल्स ले लेता हूँ, फिर 5 पिक्सल्स ले लेता हूँ, 5 px. So it will just add the shadow into my text document. I don't think it's been adding the shadow. Why is it so? It's not adding the shadow. Something went wrong. It's being adding. Okay. Shadow तो ऐड हो ही रहा है, ठीक है, तो इसी कलर में ऐड हो रहा है। You have to just justify the color to, देखो ये shadow इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। This is our website and this is the shadow of it. Okay. सो एज इन मैंने कलर सबका ब्लू रखा है जिसकी वजह से पूरा ब्लू ही आ रहा है। अब ये ब्लैक भी आएगा, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट कलर भी सिर्फ चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो शैडो पीछे अलाइन होके आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, शैडो का कलर भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। क्या शैडो का कलर रहेगा, आई विल जस्ट राइट ब्लू, ठीक है। शैडो का कलर यहाँ पे अब ब्लू हो चुका है, ठीक है। इसको जस्ट जूम आउट कर सकते होंगे, आई डोंट थिंक जूम आउट होगा, ओके लेट इट बी, ओके। जस्ट इसको जूम आउट करके देख सकते हो कि शैडो के पीछे आ गया कुछ, ठीक है। कलर इसका फिर से ब्लू दे देता हूँ, ओके, और इसका मैं कलर दे देता हूँ रेड, ओके ना, देख सकते हो। और मैं इसको थोड़ा 10 पिक्सल्स है, इसको 5 पिक्सल्स दे देते हैं, 5 पिक्सल्स। अब यहाँ पे देख सकते हो शैडो आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग, टेक्स्ट शैडो कितना हाइट मतलब कितना लेफ्ट राइट रहेगा और कितनी डेप्थ में जाएगा, दो हमें डायमीटर्स टेक्स्ट शैडो में देनी पड़ती है, दैट्स इट। ओके, इतना ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। ओके, सो वेयर इज माय मार्कर्स, और चेक माय मार्कर ओवर देयर, ओके ना। तो यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स यूज़ किए, टेक्स्ट 5 पिक्सल्स और एक
5 पिक्सल्स ऊपर। इसे इस यूज़ कि तुम्हारा शैडो कितनी ज़्यादा टिल्ट होनी चाहिए, तो ये वाला यूज़ होगा कि कितना नीचे होना चाहिए, ठीक है। सो लाइट सोर्स से कितना टिल्ट और कितना नीचे, उसके लिए हम लोग 2 पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं वर्ड स्पेसिंग। ना वर्ड स्पेसिंग जैसे हमने लेटर स्पेसिंग लिखा था, एक वर्ड स्पेसिंग भी वैसा ही है कुछ, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, अब मैं ये टेक्स्ट डेकोरेशन में से शैडो हटा देता हूँ, कुछ लेटर को अपने बड़ा कर लेता हूँ। सो जो हमारा फॉन्ट साइज इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, फॉन्ट साइज कर लेता हूँ 400 पिक्सल्स। ओके, तो ज़्यादा बड़ा हो गया है, सॉरी, जस्ट ट्राई टू डू 200 पिक्सल्स। ओके, 200 पिक्सल। अब सही, नाउ व्हाट आई विल डू, ये हो गया हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि इन वर्ड के बीच में कुछ डिफरेंस आए। सो वेबसाइट में तो एक ही वर्ड है, इसको और वर्ड बनाता हूँ, वेबसाइट इज़ कूल। ओके, अब यहाँ पे मोर देन 1 वर्ड्स हैं, अब इसमें इन दोनों के बीच में अगर हमें ज़्यादा स्पेसिंग देनी है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग, ओके, सो दिस इज यूज्ड फॉर identify that how much space should be there into the word. So I'll just write as 10 pixels, 10 pixels. So it will just जैसे पिक्सल्स बढ़ाओगे तुम लोग जैसे जैसे ये वर्ड के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। 20 किया, 30 किया, 40 किया, 50 किया, 60 किया, ऐसे ऐसे करके डिफरेंस बढ़ता जाएगा। दैट्स इट। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखी जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज़ होती है, ठीक है। अब चलने वाले आगे, which is formatting a links using CSS। अब बारी आती है लिंक्स की, ठीक है। अब लिंक्स क्या होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये वेबसाइट है, ठीक है, इसको मैं क्लिकेबल बनाऊँ कि दूसरे पे डायरेक्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं लिंक्स, ठीक है। उसके लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है वो, पर चलते हैं उसके ऊपर। मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, बैक स्पेस, ठीक है। फिर से वेबसाइट फुल आ गया, आप ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब मेरे को एक लिंक बनाना है, तो मैं H1 टैग से एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। सो बटन, ठीक, अब बटन मैंने बना दिया है। अब इसको मैं स्टाइल करता हूँ, लेकिन बटन ऐसे ही नहीं बनेगा, इसके ऊपर मैं कुछ और चीज़ ऐड करता हूँ, एक ए लिंक ऐड करता हूँ, ठीक है। अब ये लिंक का जो हर्फ रहेगा वो मैं another.html पे दे देता हूँ, जो मैं बहुत पहले बनाया था। another.html पे वो रिडायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसका नाम क्या रहेगा, BUTTON। ओके, सो देख दिस, अब वो बटन बन चुका है। नाउ अब चलो इसको CSS में स्टाइल करते हैं। कैसे करोगे, हमने एंकर टैग यूज़ किया था, तो बटन के लिए मैं ए टैग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो ए टैग यूज़ करने के बाद अब इसको मैं टेक्स्ट अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर में, टेक्स्ट अलाइन, और उसको मैं लिख देता हूँ सेंटर, ठीक है। सो इट विल कम इन सेंटर, इट इज़ नॉट कमिंग। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, H1 टैग उठाना पड़ेगा। H1 टैग को मैंने उठाया, ठीक है, और मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे देता हूँ सेंटर। अब ये सेंटर में है, बिकॉज क्यों, एंकर टैग इज डोंट सपोर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस H1 टैग में, H1 टैग यहाँ पे क्यों मैंने यूज़ किया है बेसिकली, अब मैं तुम लोग को जैसे इसको बाजू में लेके बताता हूँ। ओके, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ओके, देखो ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट, ये हमारा CSS डॉक्यूमेंट, मेन फोकस हमारा CSS डॉक्यूमेंट पे रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक H1 टैग के अंदर ए टैग लिया है, इसका मतलब अगर मैं H1 टैग के ऊपर कुछ स्टाइल लगाता हूँ तो वो एंकर टैग के ऊपर भी लगेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं H1 पे सीधा आप स्टाइल लगा रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, मैंने इसको चलो एंकर टैग को हटा ही देते हैं यहाँ से, ठीक है। H1 टैग पे मैंने सेंटर लगा दिया, ठीक है। और अब मुझे लिंक को स्टाइल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से ए को लेता हूँ, ठीक है। अब होवर करने पे, अब देखो लिंक को स्टाइल करने के मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी है। ए लिंक इज़ द नॉर्मल अनविजिटेड लिंक, ठीक है। अगर ये ऐसे उस लिंक को तुम लोग पहली बार स्टाइल कर रहे हो तो नॉर्मल अनविजिटेड लिंक होगी वो, ठीक है। नेक्स्ट ए विजिटेड इज क्लिक टू वंस टाइम, एक बार तुम लिंक को क्लिक कर देते हो तो वैसे उसका यू कैन से दैट अपीयरेंस कैसा रहेगा। नेक्स्ट इज होवर, ओके। सो होवर इज व्हाट व्हेन
वी जस्ट टेक आर माउस टू दैट। अगर हम लोग माउस को उसके ऊपर ले जाते तो कैसा बिहेव करेगा। एक्टिव एक बार उसके ऊपर विजिट कर चुके हो, विच इज़ जस्ट क्लिक। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, इसके ऊपर सब कुछ देखेंगे। ए मैंने किया लिंक, ठीक है, ए मैंने ले लिया लिंक। अब वो लिंक को मुझे करना है पर्सनलाइज। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि उसका कलर या फिर फॉन्ट फैमिली चेंज हो, फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। मैं 10 पिक्सल करता हूँ तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ 20 पिक्सल्स, और ज़्यादा छोटा होगा, चलो 50 पिक्सल्स ले लेते हैं। 50 पिक्सल्स इज इनफ। ओके ना, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर बॉर्डर है, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। मैं डैश्ड, नॉट, डॉटेड, डबल, ग्रूव, क्या लिखूँ, सॉलिड लिखूँ, ठीक है, सॉलिड आ गया। सो दिस इज़ माय बटन। इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकता हूँ कुछ। बैकग्राउंड कलर मैं रेड ले लेता हूँ, ब्लू के ऊपर रेड अच्छा लगेगा, ठीक है। दिस इज माय बटन मेड अप। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू नाउ, जस्ट ऐड सम होवर इनटू इट, सो इट बिकेम द बटन ओवर देयर, ठीक है। सो ये हमारे लिंक के लिए हो गया, ठीक है। अब सिंपल हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस बेसिक कर सकते हैं, लाइक विजिटेड वाला ऑपरेशन, होवर वाला ऑपरेशन, एक्टिव वाला ऑपरेशन। होवर वाला ऑपरेशन बहुत ज़्यादा यू कैन से दैट इंटरेस्टिंग है। इसको कैसे करते हैं, चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो ए होवर, सो होवर मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था कि उसके ऊपर अगर माउस लेके जाओ तो क्या बिहेव करेगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे होवर लगा लिया, ठीक है। अब ये एक को होवर करने पे कैसा लगेगा, मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, इसका टेक्स्ट बड़ा हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा दिखने लगे। तो कैसे कर सकते हैं इसको, मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रीन, ग्रीन, ओके, येलो ग्रीन, ठीक है। जैसे इसके ऊपर लेके जाऊँगा बैकग्राउंड इसका येलो ग्रीन हो जा रहा है, ठीक है। चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट भी चेंज हो जाए, फॉन्ट फैमिली में कर देता हूँ मोनोस्पेस। तो जैसे इसके ऊपर जाऊँगा इसका फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस हो जा रहा है, ठीक है। और इसका मोनोस्पेस होने की वजह से लुकिंग वेरी कूल आई थिंक। ओके, सो दिस इज this part of CSS, this is the part of CSS. Okay, now next, this is the hover part, and we have all this thing active and visited part, which is not that much compulsory to all. We have seen only active, link on hover part, ठीक है। So this is the creating or designing the CSS using links, ठीक है। links को कैसे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। सो आई थिंक ये समझा होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी ईजी टॉपिक, आई थिंक दैट इज़ नॉट दैट मच। ओके, सो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग ए क्यों यूज़ करते हैं, लिंक को आइडेंटिफाई और लिंक को मॉडिफाई करने के लिए यूजिंग CSS। अगर हम लोग आगे डैश डाल के लिंक यूज़ करते हैं कि वो लिंक कैसा दिखना चाहिए, होवर यूज़ करते हैं तो होवर मतलब उसके ऊपर माउस जाने पे क्या बिहेव करना चाहिए, ठीक है। वैसे क्लिक्ड भी है, ठीक है। क्लिक्ड मतलब क्या कि एक बार उसको क्लिक करोगे तो कैसा आएगा, ठीक है। सो इसको मैं कैसे बता सकता हूँ, आई थिंक वेट अ मिनट, कंट्रोल Z, ओके। सो मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ एक्टिव, ठीक है। एक्टिव को मैं कैसे बता सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले जो मैंने मार्कर यूज़ किया है, डिलीट, ओके, एंड आई विल जस्ट यूज़ एक्टिव नाउ। सो ए एक्टिव, ठीक है। सो एक्टिव इज़ व्हेन जब मैं उसको बटन को प्रेस करूँगा तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि एक्टिव पे उसका कलर हो जाए फॉन्ट कलर या फिर बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, तो वो हो जाना चाहिए वाइट। ओके, सो मैं इसको ले लेता हूँ। अब मैं इसको जैसे प्रेस करूँ, देखो एकदम वाइट हो जा रहा है, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर चला ही जा रहा है, मतलब वाइट हो जा रहा है। सो दिस इज एक्टिव, मैंने इसको प्रेस किया हुआ है, लीव करूँगा तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। फिर से प्रेस करूँगा, फिर से लीव करूँगा। सो दिस इज, समझा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो एक्टिव का ये काम होता है, ठीक है। और दैट्स इट इन द लिंकिंग पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेलेक्टर। सो CSS सेलेक्टर इज़ नॉट दैट मच बिग टॉपिक, बट इसका एक ओवरव्यू ले लो। सो सेलेक्टर इज व्हाट कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों का मतलब हम लोग CSS तो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया था H1 टैग, ठीक है। H1 टैग के अंदर A टैग आ रहा है, मतलब H1 टैग हमारे एक सेलेक्टर है, ठीक है। अगर मैं सीधा बॉडी के ऊपर
स्टाइल लगाऊँ तो तुम्हारे H1 टैग और इसके अंदर जितने भी आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ, चलो बटन तुम्हारा है ठीक है, इतना तो हमने स्टाइल यूज़ कर लिया ठीक है, इसको अब एक साइड रख दो ठीक है। अब मैं यहाँ पे नया ले लेता हूँ, इतना तो तुम लोग अच्छे समझ आएगा ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और टैग्स ले लेते हैं, तो बटन ले लिया मैंने, H1 टैग ले लिया एक और ठीक है। H1 टैग में मैंने क्या लिया है, लेट्स सपोज H1 टैग मैंने ले लिया है पैराग्राफ ठीक है। पैराग्राफ में मैंने लिया है क्या, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ ओके। मैंने पैराग्राफ लिया फिर, और एक और मैंने H1 टैग लिया है, दिस इज द फुटर ओके। सो डन, मैंने यहाँ पे 2 लाइन को एड्स किए ठीक है। अब ना मैं चाहता हूँ कि मेरे को तीनों की तीनों लाइन एक ही बार एडिट करना है, सो आई कैन यूज़ दिस बॉडी टैग फॉर एडिटिंग इट। कैसे, सीधा बॉडी टैग के ऊपर लगाता हूँ कुछ एट्रीब्यूट्स ठीक है। सो मैं बॉडी टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स क्या लगाऊंगा, फॉन्ट फैमिली में चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट फैमिली मैं चाहता हूँ कि सैंस सेरिफ हो जाए, सबका फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ में चेंज हो चुका है ठीक है। मैं एक के ऊपर लगा रहा हूँ, सबके ऊपर यूज़ हो रहा है। तो सेलेक्टर्स का मतलब क्या है ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्टर्स सेलेक्टर्स में एक्सेसिंग मोर देन वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिलेक्शन, एंड इट मीन्स सेलेक्ट स्टाइल स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन HTML डॉक्यूमेंट ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूजिंग द बॉडी टैग इसके अंदर के सारे एलिमेंट को एक बार एक्सेस कर रहा हूँ हमारे CSS वाली फाइल में ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं एक बार बॉडी को यूज़ करके पूरे के पूरे बॉडी के अंदर के एलिमेंट्स को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड आर CSS selector, that is very easy topic it is okay। so next पे चलते हैं ठीक है। so I think ये समझा होगा तुम्हें, this is CSS selector okay। now next पे चलते हैं, इतना तो बहुत ज़्यादा easy है okay। ऐसे तुम लोग बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिर्फ अगर चाहता हूँ कि इसको द फुटर को मुझे आइडेंटिफाई और एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे ID लगा देता हूँ ठीक है। सो ID से भी एट्रीब्यूट को एडिट कर सकते हो। उसमें ID लिखता हूँ इधर, ID कर क्या है, ID मैंने लिख दिया है फुट ओके। अब मैं फुट को यूज़ करके भी इसको एडिट कर सकता हूँ ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुट ओके। सो ID इज फुट, यू कैन चूज ओके, उसको बाद में देखेंगे, बट इतना समझ के चलो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा स्टफ हो जाएगा। तो इतना समझ के चलो सेलेक्टर इज बहुत क्लास से उसको कर सकते हो, क्लास ID यहाँ पर आ ठीक है। तुम यहाँ पे क्लास को भी डिफाइन कर सकते हो ठीक है। उससे भी तुम लोग इसको ईजिली यू कैन से दैट मॉडिफाई। और अगर मैं बोलूँ ID से कैसे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे फिर से ID अगर लिख दूँ ठीक है। सो ID ठीक है, ID मैंने क्या दिया था पहले, लेट्स सपोज फुट दिया था ठीक है। सो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, वो दिया था मैंने, बस इतना समझ लो फुट को करना है। तो ज़्यादा वैसे आएगा नहीं तुम लोग को ये, बस हैशटैग तुम्हें लगाना पड़ेगा, हैशटैग और नाम जो भी है ठीक है। सो आई जस्ट राइट फुट एंड सेलेक्टर। मैं चाहता हूँ जो तुम्हारा फुटर है उसका फॉन्ट साइज और थोड़ा छोटा हो जाए। सो फॉन्ट साइज 10 पिक्सल्स 10 पिक्सल। सो दिस इज हुआ नहीं वैसे ठीक है। सो फुटर को मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, रीलोड ही नहीं हो रहा। सो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आई है, लेट मी चेक इट आउट। यस द प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पर एक बड़ा फुट F यूज़ किया और यहाँ पे मैंने छोटा F यूज़ किया ठीक है। सो आई जस्ट यूज़ द बिगर वन। नाउ यू कैन सी दैट द फुटर की साइज़ हमारी छोटी हो गई ठीक है। सो फ्रंट साइज़ को मैं और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, आई विल जस्ट राइट एज 50 विल बी ओके, बड़ा हो गया ठीक है। वैसे हम लोग ID से भी इसको करेक्ट कर सकते हैं ठीक है। सो दिस इज आर सेलेक्टर्स, फुट हमारा सेलेक्टर है, ID से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉडी टैग से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टर इज व्हाट सेलेक्टिंग the more than one elements into the CSS is known as the selector basic concept ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं ओके। selector is done। changing background using CSS, you can also change the background, can change the background using CSS property, background image property in CSS, you can add images of web local interfaces and web ठीक है। तो उन लोग बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, बेसिक्स है ठीक है।
चाहता हूँ कि कुछ बैकग्राउंड भी आ जाए जो मैंने वेबसाइट बनाया, ठीक है। तो मैं बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड लगाता हूँ, ठीक है। बॉडी टैग लिया मैंने, मैं इसके ऊपर बनाता हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे URL दे सकता हूँ, ठीक है। URL क्या होगा, लेट्स सपोज मेरे पास कोई इमेज है इधर, शायद नहीं है, इमेज है एक, मैं अंदर डाल देता हूँ उसके, रिमूव, ओके। अब मैं 13.png, सो यहाँ पे मैं 13.png यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो देख सकते हो, तो जो तुम्हारा पीछे था ये तो मेरा कोड वाला ही था, तो सब वही आ गया। कोई और इमेज यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं, ओके। सो मेरा 13.png को मैं हटा देता हूँ इधर से, डिलीट सकते हो, ओके। तो अब देखो से चला गया है। कोई एक इमेज उठाते हैं उससे पहले, इमेज कहाँ से उठाऊँ, ओके। इमेज पिक्चर्स में है एक इमेज, उसको मैं इसमें डालता हूँ, ओके। wall.image है, wall.png है। मैं क्या करूँगा, हमारी URL में एंटर कर सकता हूँ wall.png, सेव करता हूँ, देखोगे वहाँ पे तुम्हारा सब आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो भी है दिस इज ओके, मैं चाहता हूँ कि रैप हो जाए हमारा, वर्ड रैप, बैकग्राउंड रैप, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट, मैं इसको नॉन इनहेरिटेबल कर देता हूँ, नॉन रिपीट, ठीक है। वो रिपीट नहीं होगा, उतना पे ही रहेगा, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन एक्सिस पे कितना रहेगा, सेंटर पे कर देता हूँ, ठीक है। अभी बैकग्राउंड को और क्या करना है, ब्लेंड मोड कर देता हूँ, कलर, ठीक है, जस्ट ब्लेंड ऑन कलर। और क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं स्ट्रेच कर देता हूँ बैकग्राउंड, इसके ग्राउंड, बैकग्राउंड क्लिप कंपोजिट ओरिजिन अटैचमेंट बैकग्राउंड size, okay. I can just adjust the size, just as it's 1000 pixels, okay, into 1000 pixel. So now just click the result because size इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। So this is adding the background into the back, okay. So इससे तुम लोग बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो अपने बैक में, ठीक है। सो और क्या कर सकते हो इसके साथ, यू कैन ऐड अटैचमेंट, पोजीशन, ब्लेंड मोड, कंपोजिट, ओरिजिन, कलर, इमेज, पोजीशन, रिपीट, साइज, अटैचमेंट, ओरिजिन, ठीक है। सब चीज़ें तुम लोग इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज। सो आई थिंक बैकग्राउंड इमेज का समझा होगा तुम लोग को, ठीक है। So this is don't make that much of sense over there. So this is what I'm trying to tell. Now next we can add something more in that. Let's आगे चलते हैं, ठीक है। So adding a border, चलो border add करना है, ठीक है। So border हमने देखा है, border डॉटेड भी हो सकता है, डैश भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, क्रूज भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे ऐड करते हैं मैं बताता हूँ। चाहता हूँ फुटर के ऊपर जो कुछ भी हो ऐड हो और बॉडी में जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। चलो फुटर के ऊपर काम करना है हमें, तो मैं फुटर को फिर से ले लेता हूँ, दैट इज़ हैशटैग फुट, ओके। इसके ऊपर मुझे ऐड करना है बॉर्डर। सो बॉर्डर स्टाइल में लिखूँगा, बॉर्डर स्टाइल बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं इसके अंदर, से कोई भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो। मैं चाहता हूँ सॉलिड आए, ठीक है। सॉलिड आ गया, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि सॉलिड तो आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर
ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बने, ठीक। तो कॉम्पैक्ट कैसे बना सकता हूँ इसको, वी कैन ऐड सम मैट मार्जिन ओवर दैट, ठीक है। तो सब हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। इसके लिए इसको सॉलिड की जगह कुछ और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विल जस्ट ऐड डैश्ड, ठीक है। डैश भी ऐड कर सकते हो, डैश ना ऐड हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे बॉर्डर्स ऐड कर सकते हो यूजिंग दिस, डैश्ड हो गया, डॉटेड में भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। सो आई विल जस्ट राइट डॉटेड, ठीक है। तो डॉटेड भी यहाँ पे आ चुका है, तो डॉटेड आ जाएगा, ठीक है। और क्या ऐड सकता हूँ, डबल ग्रूव ऐड कर सकते हैं अपन लोग, तो जस्ट राइट ग्रूव, ठीक है। ग्रूव भी आ चुका है, ठीक है। मैं रिजिड इंसेट रिजिड भी यूज़ कर सकता हूँ, सो आई जस्ट राइट ओवर देयर रिजिड, ठीक है। सो दिस इज वी कैन ऐड बॉर्डर्स इनटू इट। सो आई थिंक ये समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मार्जिन इन पैडिंग इन CSS, ठीक है। अब मार्जिन ऐड करना है, पैडिंग ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ईजी है। पहले समझ लो मार्जिन इन पैडिंग होता क्या है, ठीक है। सो जो पैडिंग होता है वो होता है स्पेस। अगर हमारे पास एक एलिमेंट है वेब पेज के ऊपर से कितना स्पेस रहेगा, नीचे से कितना स्पेस रहेगा, लेफ्ट से कितना स्पेस रहेगा, एंड राइट से कितना तुम लोग पैडिंग मार्जिन या फिर स्पेस ऐड करना चाहते हो, ठीक है। मार्जिन के होते हैं, ठीक है। तो मार्जिन इज व्हाट कि तुम लोग उसको उतना और ज़्यादा स्पेस इंसाइड करना चाहते हो, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क होता है, ओके। सो दे आर यूज इन टॉप बॉटम एंड दे आर यूज इन लेफ्ट राइट, ठीक है। सो मार्जिन तुम लोग लेफ्ट और राइट में यूज़ कर सकते हो, पैडिंग टॉप टू बॉटम में ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। सो चलो उसको करके देखते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था फुटर, ठीक है। तो फुटर को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सॉलिड पे, ठीक है। सॉलिड, ओके, सॉलिड आ गया। अब इसको मैं मार्जिन और फुटर ऐड करता हूँ, कैसे, मैं चलो इसके ऊपर पहले तो मैं पैडिंग ऐड करता हूँ, पैडिंग टॉप बॉटम, ठीक है। लेफ्ट राइट तो होती नहीं, तो मैं टॉप बॉटम यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो टॉप यहाँ पे लिखा है, टॉप से मतलब ऊपर से, मैं चाहता हूँ कि 10 पिक्सल्स ऊपर से पैडिंग दे, तो ऊपर से पैडिंग मिल गई है, ठीक है। फुटर को मिली है ना ही उसके। अब मैं चाहता हूँ कि अभी पैडिंग दे बैकग्राउंड से भी, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल्स, ठीक है। नीचे से भी 10 पिक्सल्स उसको मिल गया। जैसे जैसे स्पेस बढ़ाते जाओगे 10 पिक्सल से 20 पिक्सल करोगे अगर, ठीक है। 10 पिक्सल से मैंने 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। 20 से मैं 30 कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतना ही ज़्यादा उसके बीच में स्पेसिंग बढ़ता जाएगा, तो देख सकते हो और ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी इट हियर, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ओके, यू कैन सी इट हियर। सो और ज़्यादा ही बड़ा होते जा रहा है। अब मैं इसको सिंपली पैडिंग को 5 पिक्सल से रखता हूँ, जितना कम रहेगा उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट 5 पिक्सल्स या फिर 2 पिक्सल्स, ठीक, या फिर 1 पिक्सल भी कर सकता हूँ मैं, ठीक। और मार्जिन में क्या करता हूँ, मार्जिन इज़ फॉर वॉट की लेफ़्ट राइट में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सो मार्जिन कहाँ से चाहिए हमें, दैट इज़ हमें चाहिए मार्जिन लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो अगर मैं लेफ़्ट राइट से मार्जिन दूँ इसे, सो आई विल जस्ट यूज़ द मार्जिन एज 500 पिक्सल्स, ओके। इतना मार्जिन 500 लेफ्ट से मिला, मार्जिन 500 राइट से कितना देना है, यहाँ पर राइट यूज़ ले लेता हूँ, राइट कितना देना है 500 पिक्सल्स इधर से भी दे देता हूँ, द सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स 500 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसको मैं सेव करूँगा, तो देखो दोनों को दोनों 500 पिक्सल्स पे आ चुके हैं। तो ये सिंपल सा हमारा क्यूब सेट थिंग रेडी हो गया बनके, ठीक है। सो दिस इज़ मार्जिन एंड दिस इज़ पैडिंग। बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है, उतना ज़्यादा इसमें टफ और कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। सेटिंग डायमेंशंस इन CSS, ठीक है। तो डायमेंशन भी सेट कर सकते हो यूजिंग योर CSS, ठीक है। तो कैसे डायमेंशन सेट करोगे, मैं चाहता हूँ हमारा बटन का डायमेंशन सेट हो, ओके। मैं सिंपली जो हमारा बटन किस में था, H1 टैग में था, तो H1 की मैं डायमेंशन सेट करता हूँ, ठीक है। सो मैं विड्थ लिख देता हूँ, विड्थ, ठीक है। विड्थ मतलब मोटाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ विड्थ, ठीक है। सो विड्थ कुछ ज़्यादा हो गया क्या, H1 की, H1 अनदर HTML नहीं,
शायद ज़्यादा होगा बिकॉज मैं पूरा HTML पे लगा हूँ, ठीक है। चाहिए मेरे को, अब मैंने पूरा H1 पे लगाया, ठीक है। मेरे को ए पे सिर्फ चाहिए, ए मैंने लिया है, ए लिंक पे सिर्फ चाहिए, ठीक है। तो ए लिंक लेता हूँ, ए ओवर लिंक, ठीक। मैं इसके ऊपर लगाता हूँ हाइट, हाइट लगाता हूँ, चलो हाइट और विड्थ ही होता है तुम्हारा डायमेंशन, ठीक है। तो मैं 1100 कर देता हूँ, 100 पिक्सल्स, ठीक। सो इसको मैं रिलोड करता हूँ, कोई आया नहीं, ठीक है। इसको किसी और तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ओके। मैं चाहता हूँ फुटर के ऊपर ही हमारा जो भी चेंजेस हो, तो मैं इसी फुटर में ही करता हूँ। चाहता हूँ कि इसका विड्थ थोड़ा चेंज हो, विड्थ 100 पिक्सल्स, ठीक है। सो विड्थ 100 पिक्सल्स हुआ, फिर कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं यहाँ पे हाइट करनी चाहूँ, हाइट 100 पिक्सल्स, तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी। कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया ही, बिकॉज ये उसके ऊपर बेसिकली अप्लाई हो नहीं रहा, ओके। ये ज़्यादातर डायमेंशंस तुम लोग को इमेजेस में देखने को मिलेंगे। अगर मेरे पास कोई एक इमेज हो तो मैं इसके अंदर ला सकूँ इसे, हाँ वॉलपेपर था, IMG प्रॉपर्टी BorderIMG, ओके, छोड़ो सब, ठीक है। सो विड्थ इज व्हाट क्या तुम लोग अपने विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इन द सेंस फिर से फुटर के ऊपर कुछ ट्राई करता हूँ डालने की। सो फुटर के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, फुटर के ऊपर मैं ये बोल सकता हूँ कि हाइट, या फिर फुटर नहीं, मैं फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर बोलता हूँ, ठीक है। सो H1 है, ई के ऊपर मैं कुछ लगाता हूँ, ठीक है। सो WI width should be 10 पिक्सल्स, ओके। सो विथ 10 पिक्सल्स होने की वजह से वो लेफ्ट में अलाइन हो गया, ठीक है। और वही हाइट में देता हूँ HIGHT 20 पिक्सल्स। सो देखोगे फिर से वहाँ पे वो चला गया, ठीक है। बिकॉज ये हुआ क्या कि पूरे कंटेनर को विड्थ और हाइट दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से इस साइड आ गया, ठीक है। विड्थ मतलब क्या कि मैंने उसका हाइट बढ़ा दी है, ठीक है, और विड्थ कम कर दिया, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में फॉर्म हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। तो जिसकी वजह से पहले कैसा था, फॉर एग्जाम्पल तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले सब कुछ ऐसा ऐसा करते थे, ठीक है। अब मैंने उसका विड्थ और ये कर दिया है, विड्थ और हाइट कम कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया, तो जो ऊपर वाली चीज़ें वो ऊपर शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो जिससे वजह से तुम लोग अपने नए लाइक बोल सकते हो फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हो इसको साइड में लेके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विड्थ और हाइट की डायमेंशन सेट करने की प्रॉपर्टी, ओके। तो तुम लोग साइड में ले सकते हो, इसको भी तुम लोग साइड में ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी ऑफ दैट सेम थिंग। अभी ये मैं यहाँ पे फुटर में कर रहा था तो क्यों नहीं हो रहा था, बिकॉज आई वॉज डूइंग ऑन टेक्स्ट और वो अप्लाई हो रहे थे इसके बॉर्डर्स पे, ठीक है। उसके फिर से हम लोग करके देखते हैं उसमें। मैं फिर से इसको कमेंट कर देता हूँ। अब चलते हैं फुटर पे, ठीक है। ये रहा हमारा फुटर, इसके ऊपर मैं देता हूँ विड्थ, देता हूँ मैं लेट्स सपोज 10 पिक्सल का, विड्थ 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा कम हो जा रहे हैं, विड्थ देता हूँ मैं 50 पिक्सल्स का, ये भी कम है, 100 पिक्सल्स भी ओके, ओके 100 पिक्सल में सब आ रहे हैं, नहीं आ रहे, 150 शुड भी ओके, 150 में भी नहीं आ रहा है, 180 शुड भी ओके, हाँ 180 में आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो टेक्स्ट अलाइन फुटर है ना ये, तो टेक्स्ट अलाइन में टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दूँ, ठीक है। ये अब कुछ अच्छा दिख रहा है, उसको मैं इस साइड और कर सकता हूँ, कैसे, इसकी हाइट चेंज करके, ठीक है। HEIGHT हाइट मैं कर सकता हूँ कितना, 20 30 40 50 200 कर देता हूँ, 200 पिक्सल्स, अच्छा लग रहा है कुछ, हाँ ओके। सो दिस इज फिर 180 करो, 180, ओके नाउ इट्स गुड, ओके। सो दिस इज द डायमेंशन प्रॉपर्टी, उसके डायमेंशन कैसे तुम लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके नाउ
this is how I have done this. So this is a basic thing about the CSS. Next पे चलते हैं. Using inline containers. Now what do you mean by inline containers? So basically inline containers are what कि तुम लोग एक लाइन में अपने कंटेनर्स को ऐड करते हो, ठीक है. सो बेसिकली दो टाइप के कंटेनर्स होते हैं. पहला होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स. ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन. Statements out of left, right, and far can be occupies the whole horizontal space of the line. Okay, so इसको मैं बताऊंगा क्या होता है ब्लॉक लाइन. इनलाइन एलिमेंट्स आर व्हाट. इनलाइन एलिमेंट्स आर अपोजिट ऑफ, इसका जस्ट अपोजिट होता है ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है. और ये जो नेसेसरी स्पेस है वही लेता है, नेसेसरी विड्थ होता है इसका. इट ऑक्यूपाई द स्पेस बाउंडेड बाय द टैग्स एंड डिफाइंड बाय HTML एलिमेंट इंस्टेड ऑफ द ब्रेकिंग द फ्लो ऑफ इट. ओके, सो उसको कैसे यूज़ करते हैं मैं इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकली ही बताता हूँ. ओके, तो बेसिकली इसको कैसे यूज़ करेंगे, मैं जस्ट ये जो फुट वाला है इसको मैं कुछ ये वेट वाला हटा देता हूँ. ओके, और मैं क्या करता हूँ, ये पैडिंग भी हटा देता हूँ. ओके, पैडिंग भी हट गया. तो देखो इसके ऊपर हम लोगों ने जो टैग लगाया था, इसके ऊपर हम लोगों ने बटन लगाया था, ठीक है. तो ये कंटेनर के अंदर था. अभी देखो ये दोनों ही हमारे एग्जांपल्स हैं. ये जो है द फुटर वाला, ठीक है, और ये द बटन, ठीक. तो यही दोनों हमारे एग्जांपल्स हैं इनलाइन और ब्लॉक कंटेनर्स के, ठीक है. तो यहाँ पे देखो H1 टैग के हम लोगों ने ए एंकर टैग लगाया था H1 के अंदर. तो एक कंटेनर है, क्या है, कंटेनर है, क्या है, H1 टैग कंटेनर. H1 को हम इनलाइन कंटेनर्स बोल सकते हैं. इनलाइन कंटेनर्स. क्यों इनलाइन कंटेनर्स बोल सकते हैं, बिकॉज एक स्पेसिफिक एरिया ये कवर कर रहा है, ठीक है. लेकिन जो हमारा ये वाला है द फुटर, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कवर कर रहा है. तो ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है. क्या है, ब्लॉक एलिमेंट. सो वी कैन यूज इट H1 एज एन ब्लॉक एलिमेंट. बस ज़्यादा कुछ नहीं. अभी H1 और दिस एंकर टैग इस एलिमेंट में ब्लॉक है. एलिमेंट क्यों कहलाता है, बिकॉज ये पूरा पूरा एक ब्लॉक को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है. और ये इनलाइन क्यों कहलाता है, बिकॉज एक लाइन में यहाँ पे तुम लोग कोई और बटन भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कोई और बटन ऐड कर सकते हो. सो दैट इज़ द बेसिक पार्ट अबाउट द इनलाइन एंड दैट कंटेनर्स, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इतना ही है हमारे सिलेबस में. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड लेट मी नो इफ यू हैव सम डाउट इन इट. सो इट इज़ वेरी बेसिक कंसेप्ट अबाउट CSS एंड इसको लास्ट में पढ़ना होगा तो it's your interest because CSS is not a very small topic, and if I just record the lecture over that, so it will take 1 to 2 days to just record it out. So just let me know if you have some doubt and just stay connected, keep learning, keep going. That's it.